book with me. Okay, apart from Khushi, sum number 7 and sum number 13. Else? Ma'am, Else 9. which sums you have? Sum number Yes, 9. 9. Yes. Okay. What about others? Ma'am, 11. सिर्फ 3 लोग कोई डाउट है, बाकी सबको सब कुछ आता है. Sum number 11. Okay. Else? First one. फर्स्ट में भी डाउट है. Yes. क्या हो गया फर्स्ट? ठीक है, फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, रीड करो देविका फर्स्ट वन. क्या सामने फर्स्ट वन? A monochromatic ray of light strikes the water where refractive index is 4/3. Surface in a cylindrical vessel at angle of incidence 53 degree. Depth of water is 36 centimeter. After striking the water surface, how long will the light take to reach the bottom of the vessel? Okay. Angles of the most popular Okay, go ahead. Angles of the most popular Pythagorean triangle of sides in the ratio 3:4:5 are nearly 37 degree, 53 degree, and 90 degree. This is sum number 1. Okay. Now what it is saying? There is a monochromatic ray of light strikes the water at n is equals to 4/3. N of that particular medium is 4/3. Okay. Now this particular surface of the water is in the cylindrical vessel. Okay. Now in this, if I draw a water inside this particular cylinder, okay, and if my light is falling something like this, मेरा light जो है light ray ऐसा कुछ गिर रहा है in this way, so that particular ray of light, of course it will bend straight line, तो वो continue नहीं करेगा. Okay. Now this is the normal. Fine. It is making 53 degree with the normal. The incident ray is 53 degree. Okay. Now this is original path, but ये original path के साथ जाएगा नहीं. It will bend for sure. There will be bending across it. Now what it is saying? Angle of incidence is 53 degree. Depth of the water is 36 centimeters. जो आपका पानी का depth है ये जो है ये 36 centimeters है. Okay. Now what? After striking the water surface, how long will the light take to reach the bottom of the vessel? ये strike करने के बाद कितना टाइम लगेगा कि ये जो राइट रे है ये आपके सरफेस, ये जो आपका जो भी वेसल है उसके बॉटम को टच करेगा. Okay, this is the time we need to calculate. We need to calculate the time in which your light ray will touch the bottom of the cylindrical vessel. Now they have given some clue to you by giving the Pythagorean angles. What they are saying that there is a special kind of Pythagoras triangle in which the side का जो ratio होता है, the ratio of the sides are 3:4:5. Means that somewhere they are indicating कि ये जो triangle बनने वाला है ये Pythagorean triangle बनने वाला है. This is what they want to indicate कि whatever triangle here we are forming, ये अगर आप ये पूरा एक triangle देखो, this triangle, अगर आप ये देखो तो वो बोल रहा है कि ये कहीं ना कहीं पाइथागोरियल ट्राइंगल जैसा कुछ फॉर्म कर रहा है. ओके ना, पाइथागोरियन ट्राइंगल का पार्ट ऐसा होता है कि पाइथागोरियन ट्राइंगल में जो साइड 3 डिग्री 4 डिग्री और 5 डिग्री का पार्ट है ये कहीं ना कहीं नियरली जो एंगल्स बनाते हैं, मतलब इन अ पाइथागोरियन ट्राइंगल you will get 3 angles. Of course one will be 90 degree and the another 2 will be 37 and 53 degree. ऐसा बनता है ये ट्राइंगल. Okay, now look at the geometry of this particular vessel. If this is 53 degree, if I consider this as 53 degree, we know segment this part. If I represent it by OB, let's represent it by OB. This part I am saying OB is equals to 36 centimeter. Next what? Take me to go. Let me set my book properly. Okay, let me draw the triangle again. Let me draw the diagram again.
what we were saying, this is the vessel. ओके यहां से रे ऑफ लाइट गिरा, ये पार्ट है, थोड़ा सा बेंड होगा, बेंड होकर यहां पर पहुंच रहा है. इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज द सरफेस ऑफ द वाटर, ये एंगल जो बनेगा ये बनेगा 53 डिग्री. ओके नाउ दिस पार्ट इज 36 सेंटीमीटर. वो बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल बनेगा, that triangle somewhere it is indicating that it is a Pythagorean triangle. Now if I say this segment as OB, so OB is equals to 36 centimeter. Next what? Next वो बोल रहा है n of water is 4/3. आपके हिसाब से आपको क्या लगता है what we can do? हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम फाइंड कर ले, इस वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी वो फाइंड कर ले. सो अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट और ये डिस्टेंस मिल जाए तो हमको पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन, ये स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर मुझे इस मीडियम में स्पीड मिल जाए और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मिल जाए तो मैं टाइम निकाल सकती हूँ, है कि नहीं? Yes. ओके नाउ पहला फंडा हमारा ये होगा कि लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट what is the distance of this particular side. ये साइड का डिस्टेंस निकालते हैं. स्पीड तो अपने आप निकल जाएगी, स्पीड का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. स्पीड हम नॉर्मली v इज इक्वल्स टू c/n करके हम निकाल लेंगे, तो स्पीड तो डायरेक्ट निकल जाएगी. पहले हमको इसके बारे में डिस्कस करना है कि ये साइड हम कैसे निकाल सकते हैं. what I want to go for, this is air, correct? This is water. Let's try to calculate the angle of refraction first. And when you calculate the angle of refraction by Snell's law, n1 sine of I is equals to n2 sine of r. आपके पास I है, आपके पास n1 है, आपके पास n2 है. n2 is water of course. आपको r निकालना है. जब आप r कैलकुलेट करोगे तो what you will find that what you will find, करके देखो. चलो सॉल्व करो सब लोग ये सम. गिव मी द r वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग. मैम 37 मिल रहा है. यस r कितना आ रहा है? 37 डिग्री. तो r आपको 37 डिग्री आ गया. नाउ n1 1 है, साइन i आपको i पता है आपको कितना है 57 डिग्री, n2 4/3 है, करेक्ट. आपको साइन ऑफ r निकालना है. आपको r मिल जाएगा 37 डिग्री. मैम sin 53 डिग्री है ना? क्या? आई 53 डिग्री है ना? यस i is 53 डिग्री. ओके सो अब ये हो गया 37 डिग्री. 37 डिग्री ये देख के पता चल रहा है कि दिस इज 90 डिग्री. 90. तो बच्चा हुआ ये वाला एंगल कितना होगा? 53 degree. alternate angle. So now it becomes, somewhere I can say it becomes a Pythagorean triangle. Yes. है कि नहीं? यस. Yes. Now if it is a Pythagorean triangle, we know that Pythagorean triangle का जो side ratio होता है वो 3:4:5 होता है. It is 3:4:5. Okay. Now अब ये OA जो है, if I say this as A, this OA is forming the hypotenuse. Okay. Segment of OB. Now how it goes? तुमको क्या लगता है 3:4:5 किसका होगा? कैसे बनाओगे इस रेशियो को? How will try to X have common multiple. X common X X common is the multiple common रहेगा. multiple. Common multiple. Yes. भी 4x हो Yes. जाएगा. 3x, 4x 5x. and 5x. 5x. ठीक है, ये तीन अब आपके साइड्स है. अब Yes. मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिसाइड कि which one is 3x, which one is 4x and which one is 5x? Pythagoras बड़े का angle हम बड़े एंगल ये के वाला सामने को बड़ा साइड रहेगा. hypotenuse. बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड है. बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड रहेगा. 53 के सामने 4x आएगा. यस. हाइपोटेनस 5x होएगा और AB Yes. 3x होगा. 3x. आपको पता है कि हाइपोटेनियस दोनों का सम होता है. दैट इज क्वाइट क्लियर. Yes. Yes. Yes.
53 के अभी सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूस होगा, ये कंसेप्ट तो क्लियर है कि मतलब 5x इसके पास जाने वाला है। Yes. बचे Yes. ये दोनों, अब देख के पता चल रहा है कि दिस विल बी ऑफ कोर्स 3x एंड दिस विल बी ऑफ कोर्स 4x। 4x. Okay. Yes. क्योंकि Yes. Yes. एंगल बड़ा होता है, उसके सामने वाला साइड ऑफ कोर्स बड़ा होता है। सो Yes. योर 4x विल बी योर OB। आपके पास OB की वैल्यू है 36, जिससे आपको x मिल 36. जाएगा। 9. 9. सो 36 by 4 इज इक्वल्स टू 9। 9. ये आपको मिल गया x की वैल्यू। अब आप OB की आप OA की वैल्यू निकाल लो। 45. 45. 45. 45. 5 into 9 is 45। मतलब आपको अब ये मिल गया, साइड मिल गया, मतलब डिस्टेंस मिल गया। स्पीड कैसे निकालोगे? स्पीड इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू c by n। C by c इज n. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, 3 into 10 raised to 8। 10 raised to 8. n हमको दिया है 4 by 3। 4 by 3. Yes. 9 by 4 आएगा. 9 by 4. 8. So you will get v as 9 by 4 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। आपके पास डिस्टेंस आ गया, आपके पास स्पीड आ गई। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। Time is Therefore, time equals is to equals to S by speed V. upon- S by V. Speed by V velocity. This is how you समझो। समझा सबको? Yes. समझा Yes. everyone? Yes. देविका, are you clear? लिख के लेना है तो लिख के ले लो फटाफट। नेक्स्ट सब में कौन सा किसको डाउट है? सम नंबर 7। खुशी रीड करो सम नंबर 7। खुशी, आर यू देयर? Yes, miss. हाँ, रीड सम नंबर 7। Figure below shows the section ABCD of a transparent slab. There is a tiny green LED light source at the bottom left corner B. A certain ray of light from B suffers total internal reflection at nearest point P on the surface AD and strikes the surface CD at point Q. Determine refractive index of the material of the slab and distance DQ. At Q, the ray PQ will suffer partial or total internal reflection. You may use the approximation given in question 1 above. ओके, अभी बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, आप खुशी बहुत आराम से मुझे क्वेश्चन रीड करो, क्योंकि आई डोंट हैव टेक्स्ट बुक, तो मुझे क्वेश्चन तुम्हारे थ्रू ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो मुझे समझा कि देयर इज अ स्लैब, ग्लास स्लैब। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देयर इज अ ग्लास स्लैब। ओके, जिसका जो इंडिकेशन दिया है वो बोल रहे हैं ABCD, ऐसा कुछ इंडिकेशन है। आगे बताओ खुशी क्या है? मिस जो नेक्स्ट डीसी क्या बोल रहे हैं? डीसी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। डीसी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। ओके, एक मिनट रुको। योर डीसी, दिस पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। यस, बाहर साइड लिखना है आपको अंदर साइड नहीं लिखना है। मैं वापस रे डायग्राम बनाऊंगी, अदरवाइज रे डायग्राम बनाने में मिस्टेक हो जाएगा। मैं सिर्फ इंडिकेशन ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास सम्स नहीं है। नेक्स्ट, बीसी 6 और क्या सेंटीमीटर। दिया है? डीसी 6 सेंटीमीटर दिया है। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? एनीथिंग एल्स इज गिवन? मिस एडी और ए और डी के बीच में पी है, मतलब बीच में नहीं है, पी डी के साइड में पी है और एपी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ऐसा कुछ है? हाँ, ठीक है, अब रीड करो डी के क्वेश्चन क्या बीच है। में क्यू है। किसके बीच में है? डीसी। डीसी के बीच में। ओके फाइन, मिस अब रीड इसमें करो दे वापस से। हाँ, figure below shows the section ABCD of a transparent slab. There is a tiny green LED light source at the bottom left corner B. A certain ray of light गो अहेड। A certain ray of light from B suffers total internal reflection at nearest point P on the surface AD and strikes the surface CD at point Q. ओके, Determine refractive index of the material of the slab and distance DQ. At Q, the ray PQ will suffer partial or total internal reflection. You may use the approximation. नाउ given in रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने बोल रहा है स्लैब का, और क्या बोल रहा है? डिस्टेंस, और नेक्स्ट क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए? and distance DQ. डिस्टेंस DQ। फ्रॉम वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस DQ? DQ और PQ? DQ.
Okay. Next, you have to calculate distance dq. Okay, और fine. पार्शियल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्यू पे, वो बताना. Okay. Now, question में ऐसा दिया है कि there is a what we can say, there is a slab. Okay. This slab is A, B, C, D. यहाँ पर एक तुमने LED की लाइट रखी है, उससे तुम उसको यहाँ से अंदर एंटर करवा रहे हो such that you should experience a total internal reflection. This is what is given. Okay. Now, next what? If this is 3 centimeter, this will be also 3 centimeter for sure. This is 6 centimeter, तो ये PD जो होगा ये 2 centimeter हो जाएगा. Okay. Now what? What do you think? What we can do? अब ऑफ कोर्स मुझे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए इस पॉइंट पे, तो मैंने मेरा जो भी एलईडी लाइट गिराया है वो एलईडी लाइट क्रिटिकल एंगल पे गिराया होगा. दैट इज ट्रू. यस. Yes. अगर क्रिटिकल एंगल पे गिराया है एंड जस्ट लुक एट द पार्ट, दिस इज 3 centimeter, this is 4 centimeter, somewhere it will be 5 centimeter. 5 centimeter. 5 Yes. centimeter. 3:4:5 के रेशियो में आ रहे हो कि नहीं? Yes. 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 Somewhere it is working like a Pythagorean triangle. Yes. 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 This is 53 डिग्री हो गया. So of course 4 सेंटीमीटर का सामने वाला, अभी हमने पीछे देखा, Yes. 4 सेंटीमीटर का 53. सामने वाला 53 53 डिग्री हो जाएगा. Yes. करेक्ट है? Yes. यहाँ तक समझा सबको? यस. Yes. 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 तो क्लियर हो गया कि नाउ व्हाई इट इज 53 डिग्री. नेक्स्ट क्या होगा आप देखते हैं. नेक्स्ट इज हमको नेक्स्ट वैल्यू जो हमको निकालनी है, हमको पहली बात तो हमको दो कंसेप्ट निकालने हैं. एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है, दैट इज इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है हमको वो निकालना है. और दूसरी चीज हमको ये निकालनी है कि पीडी का डिस्टेंस क्या है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्यूडी. सॉरी, हमको क्यूडी का डिस्टेंस निकालना है. ओके. नाउ व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी कैन गो फॉर. थोड़ा ज्योमेट्री लगाओ दिमाग से, क्या कर सकते हो. स्क्वायर बन जाएगा. अगर पी ऐसा पी क्यू ऐसे जॉइन करते तो स्क्वायर बन जाएगा. मुझे यहाँ के एंगल्स बताओ, कैसे बताओगे. यूज ज्योमेट्री. मैं मैम वो मैम वो left side का 37 50 हो डिग्री हो जाएगा. जाएगा. अल्टरनेट एंगल Alternate. आई कैन से दिस इज आईसी, 50. यस. Yes. Yes. क्योंकि मुझे अगर Yes, यहाँ sir. पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो ये आईसी पे गिरना चाहिए. दैट इज ट्रू. क्योंकि तभी जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप कब एक्सपीरियंस करते हो, जब आई इज ग्रेटर देन आईसी और आई इज Yes. इक्वल्स टू आईसी. ये दो कंसेप्ट चलते हैं. दिस इज व्हाट आई कैन से. पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ है तो मतलब आई इज इक्वल्स टू आईसी, आपका थोड़ा ये जो भी होगा वो इस पे आके गिरेगा. बट इफ आई इज ग्रेटर देन आईसी यू विल एक्सपीरियंस अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मतलब आईसी का कंडीशन तो एटलीस्ट आपको फॉलो करना है. ओके. आई एम कंसिडरिंग, लेट्स से इट इज आईसी, जस्ट टेक अ कंसिडरेशन इट इज आईसी. व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी दिस एंगल. व्हाट विल बी दिस एंगल. मैम 53 हो जाएगा. क्यों. मैम वो 37 होगा ना. मुझे ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन दो. यूज योर ज्योमेट्री. 10th स्टैंडर्ड में जो ज्योमेट्री पढ़ी है, यूज दैट ज्योमेट्री एंड गिव मी द एक्सप्लेनेशन व्हाटएवर यू आर सेइंग. use your geometry and give me the explanation. Whatever angle you are specifying कि नहीं मैम यहाँ 37 होना चाहिए या 53 होना चाहिए, जो भी एंगल आप बोल रहे हो मुझे मैम रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये 53 डिग्री हो जाएगा. Of course, this is a plane surface, no guys? Yes. So एक बात तो सिंपल फंडा क्लियर है कि if I look at this, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, this two will be parallel. Yes, alternate. अगर ये angle. दोनों Yes. पैरेलल अल्टरनेट होगा, एंगल है. अल्टरनेट ट्रायंगल, अल्टरनेट है तो अल्टरनेट है तो ये 53 हो जाएगा. Yes. Yes. रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट के हिसाब से पता है कि जितने पे अगर प्लेन सरफेस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट सेम हो जाता है. तो अगर ये Yes, 53 डिग्री. 53 डिग्री है तो ये अपने आप 53 डिग्री हो जाएगा. 53. Yes. Yes. Yes.
Now if this is 53 degree, the whole is 90. This will be 37 degree. 37. Yes, 37. 37. मैं उसको ये भी 53 हो जाएगा साइड वाला एकदम. अब यहाँ से भी अल्टरनेट ले लो, Yes, alternate. तो ये हो जाएगा आपका 37 डिग्री. 37 और उस ऊपर पर और से अगर 53 यहाँ से हो जाएगा. लेते हो तो ये हो वहाँ पे जाएगा 53. 53. 53. Yes. कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes. ma'am. Yes. अब IC की वैल्यू मिल गई है तो N की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी. यस N of glass is equals to 1 upon sine of IC. अगर याद हो, Yes. the refractive yes. index of a Yes. medium is equals to 1 upon Yes. sine of IC for critical Yes. angle. IC आपको पता है तो 1 upon sine of 53 degree. 53 degree. Total 5/4 आ रहा है. So you'll get 5/4 as the 5/4, refractive index of the yes. glass. अब next what you can say, next क्या calculate करना है? DQ तक तो मतलब मेरे हिसाब से इतना जाने की जरूरत भी नहीं है. DQ तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा. It is 3. बट उन्होंने ये Yes, बात बोली 1.5. नहीं. See what they have said क्या कि Q is at the center of the CD, ऐसा बोला है क्या उन्होंने? No. No. नहीं बोला है. No. तो हम लोग ये कंसेप्ट डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते. मैम सिमिलर ट्रायंगल्स Which one similar triangle? वो Similar triangle के Right. कंसेप्ट से कैसे जाओगे? नहीं होगा का मैम. ट्रायंगल और लेफ्ट साइड का ट्रायंगल ना मैम 37 इक्वल है 90 इक्वल है और Ratio equal आएगा मैम. इक्वल है ना. Yes, ma'am. ऐसे टेस्ट से सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव होएगा. Yes. Similar triangle proof होगा, that is okay. But what I am saying, are you trying to understand? I said मैम, कि नहीं होगा. कहीं पर भी QD मालूम होना कहीं चाहिए. सिमिलर ट्रायंगल जो बोल रहे हो ना, वो तो मैं ऐसे ASA टेस्ट से मैं बोल भी रही होगी. ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि सिमिलर ट्रायंगल है, एक साइड कॉमन है, दो एंगल्स कॉमन है. आई सेड दैट ओके इट इज अ सिमिलर ट्रायंगल. एंगल टेस्ट से भी प्रूफ होगा. तो वो नहीं बोल रही हूँ मैं. Yes. मैं बोल रही हूँ कहीं पर ऐसा लिखा है क्या Q is at the center of the CD? No. How can I assume that? No, no. No, ma'am. No. क्वेश्चन में अगर ये बात नहीं लिखी है कि Q is at the center, तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते जस्ट बाय लुकिंग एट द ज्योमेट्रिकल डायग्राम, क्योंकि डायग्राम हम लोग इतना परफेक्ट तो बनाते नहीं कभी. मैम पाइथागोरन ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हैं. पाइथागोरन ट्रिपलेट ही यूज करना है एक्चुअली. यूज द पाइथागोरन ट्रिपलेट. ट्राई करो, फाइंड करो. Yes. पाइथागोरन ट्रिपलेट के हिसाब से 3:4:5 का रेशियो होना चाहिए. अगर आप यही वाला ट्रायंगल ले लेते हो, टेक दिस ट्रायंगल, आपके पास 53 डिग्री है, उसके सामने वाला 2 सेंटीमीटर है. 37 डिग्री है, उसके सामने ऑफकोर्स हाइपोटेनस होगा, तो ये 5x वाला पार्ट होगा. तो ऑफकोर्स ये 4x वाला पार्ट होगा, ये 5x वाला. अगर ये 53 के सामने वाला 4x वाला पार्ट होगा, तो ये कहीं ना कहीं 5x वाला पार्ट होगा, ये कहीं ना कहीं 2x वाला पार्ट होगा. 2x, ट्राई करो, yes. क्या कर सकते हो. 3x वाला, सॉरी मैम 3x वाला 2x पार्ट होगा. equal ट्राई to करके 4 बताओ मतलब. 2 इक्वल टू 4x आएगा तो x 1/2 मिलेगा. बाद में 3 के जगह 1/x के जगह 1/2 आएगा तो 1.5 आएगा. Yes, 1.5. यस. यस कोई बोल रहा था, कौन बोल रहा था? शेरॉन बोल रही थी. शेरॉन बोल, क्या बोल रही है? मिस सबसे बड़ा एंगल 53 है. 53 का ऑपोजिट 2 है, तो 2 सेंटीमीटर. तो 4x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ठीक है. x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1/2. ठीक है. और 37 सबसे छोटा है, तो वो 3x इज इक्वल्स टू 3x में डालेंगे, तो x का वैल्यू 1/2, तो 3/2 Yes, डालेंगे ma'am. 1/1.5. ठीक है, ये समझा सबको? खुशी Yes. समझा तुमने क्या Yes. किया? Yes. पूरा पाइथागोरन ट्रिपलेट पे चल रहा है. So this is how. But now, as I said, 53 degree is a critical angle. It is not the angle of incidence which is greater than critical angle. Okay. So you do not experience total internal reflection, purely total internal reflection at critical angle. Purely total internal reflection greater than critical angle पे गिरता होता है. Means it is a partial internal reflection at Q. Are you understanding? मैम And एक बार first of रिपीट all- करो ना. क्या? Listen. We have to discuss at point Q, correct? मैं P के बारे में बात कर रही थी. Let's talk about the Yes. at point Q. At point Q के बारे में बात करना है. Critical angle of a glass हमने देख लिया 53 डिग्री है, और ये एंगल कितना आ रहा है at point Q? What is the angle at point Q? ये जो एंगल गिर रहा है 53 30,
अरे गधो 37 37 ये एंगल कितना है 37 है ना तो यस क्रिटिकल Yes. एंगल से Yes. कम है या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है कम है। कम है कम है कम है। तो क्रिटिकल एंगल से कम है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्या पार्शियल नो Yes. partial पार्शियल so होगा so at point q you will experience a partial internal reflection hope you are clear what I'm trying to say केदार कुछ समझ में आ रहा है क्या यस मैम केदार तेजस Yes. तुम लोग मुंह बंद Yes, करके ma'am. बैठोगे तो मेरा ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि मैं तुम लोगों का मुंह देख के पहचान लूं कि तुमको सब नहीं समझा मुंह खोलो बच्चों 4-5 बच्चों को छोड़ के कोई मुंह ही नहीं खोल रहा है ऐसे नहीं चलेगा फिजिक्स में समझ आना जरूरी है वरना फिजिक्स में कुछ नहीं आएगा तुमको सेम पेपर्स में भी मिस्टेक किया है तुम लोग ने तुम लोगों को सिंपल सिंपल सम सॉल्व करने नहीं आता है बात नहीं करोगे डिस्कस नहीं करोगे तो सम्स कैसे करोगे अच्छा लेट मी नो वन थिंग फ्रॉम योर साइड जो लोगों को आ रहा है उनको छोड़ दो उनकी उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं जो लोगों को नहीं आ रहा है डू यू वांट मी टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम ऑफ योर टेक्स्ट बुक चाहते हो मैं करवा के दे दूं क्यों मैंने इतने सारे सम्स बीच में करवाए कि तुम लोग का टेक्स्ट बुक का सम सामने कुछ ना लगे उन सम्स के सामने let me talk to you people madhuri ma'am are you there madhuri ma'am or pratibha ma'am whoever is hosting हेलो पर्टिकुलर लेंस को शिफ्ट किया है ओके और शिफ्ट करने के बाद वापस से वो सेम साइज बना रहा है इट अगेन प्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द अर्लियर जो पहले वाला था डिटरमाइन द इमेज साइज व्हाट डू यू थिंक क्या कर सकते हो क्या इन्फो कर सकते हो इससे क्या सोच सकते हो इसके बारे में 6 सेंटीमीटर की पेंसिल है कॉन्वेक्स लेंस है क्या सोच सकते हो इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक क्या होगा what will be the image distance what will be the I can say मीन्स इमेज डिस्टेंस object distance क्या कंसीडर करोगे मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फोकल लेंथ के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फोकल लेंथ के इक्वल टू कंसीडर करना है क्यों मीन्स फोकल लेंथ के इक्वल अगर शिफ्ट करेंगे कॉन्वेक्स लेंस तो भी सेम साइज का वो इमेज प्रोड्यूस करेगा। नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता कोई और कुछ बताएगा व्हाट यू कैन इन्फर मैम f/2 बन जाएगा सेम साइज है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फोकल लेंथ का हाफ कंसीडर Yes. कर सकते हैं। हाँ क्यों करना है वही तो पूछ रही हूँ मैं भी तो फोकल लेंथ से शिफ्ट हुआ तो पर मतलब जब फोकल लेंथ से शिफ्ट होगा लेंस तो ऑब्जेक्ट राइट साइड रहेगा पर सेम डिस्टेंस पे रहेगा और सेम इमेज ही बनाएगा। मुझे नहीं समझा वापस से समझाओ व्हाट यू सेड मैंने ग्राफ ये रॉन्ग ड्रॉ किया ये सब ऑप्टिकल सेंटर बीच में आएगा कीप इट इन माइंड फिर से कोई एक वैलिड रीजन दो ना मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए एंड लेंस को शिफ्ट किया तो ऑब्जेक्ट का साइज सेम ही रहेगा हाँ तो ऑब्जेक्ट का साइज तो हमेशा सेम ही होता है मैं इमेज साइज के बारे में ही बात कर सकती हूँ सॉरी इमेज साइज अनचेंज रहेगा अगर लेंस को शिफ्ट किया तो फोकल लेंथ की मतलब दे आर सेइंग कि अगर मैंने मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हमारे लेंस के फोकल लेंथ के इक्वल टू साइज में शिफ्ट किया तो आई गेट द सेम साइज दिस इज द मेन कंसेप्ट व्हाट दे आर सेइंग नाउ आई वांट टू डिसाइड where should I keep the object so that if I change my particular object by that particular distance I should get the same image but whatever you are saying वो तो तुमने रीड किया है मुझे conceptually बताओ कि चल क्या रहा है what is happening here why it is like that क्या रीजन है टेक्सचुअल रीडिंग मत बताओ मुझे रीजन बताओ
सोचो इसके बारे में। रे डायग्राम्स को सोचो जरा। हमने 6 रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स लेंस के पढ़े हैं ना 10th स्टैंडर्ड में। क्या पढ़ा है हमने? क्या पढ़ा है हमने 6 रे डायग्राम्स में? जरा उनके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। कोई बोलेगा कुछ? सब लोग शांत हो गए? लेक्चर चल रहा है नहीं चल रहा है? थिंक अबाउट इट बच्चों। कुछ भी, कुछ तो बोलो, कुछ तो कंक्लूजन निकालो कि मेरे को मेरे पेंसिल को इस तरीके से शिफ्ट करना है कि शिफ्टिंग के बाद भी, आफ्टर शिफ्टिंग ऑल्सो आई शुड गेट द इमेज ऑफ द सेम साइज। अगर लेंथ इमेज छोटा सेम कर साइज का चाहिए तो पहले का इमेज और बाद का इमेज, पहला कंक्लूजन तो यही है कि अगर मुझे इमेज सेम साइज का चाहिए तो पहले जितनी दूर पे इमेज था उतनी ही दूर पे इमेज रहेगा। मीन्स v1 विल बी इक्वल टू v2। ये मेरा पहला कंसिडरेशन है। सेम साइज चाहिए ना मुझे इमेज, तो इमेज तो एक ही पॉइंट पे सेम साइज पे मिलेगा, जो डिस्टेंस में वो पर्टिकुलरली रहेगा। इमेज का डिस्टेंस चेंज हुआ कि तुमको साइज में डिफरेंस मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक फर्दर? नेक्स्ट कंक्लूजन क्या ले सकते हो? लेंथ छोटा ले सकते हो। क्या छोटा ले सकते हो? अच्छा एक काम करो, ट्राई टू डू वन थिंग। u1 और u2 के फॉर्म में कुछ कैलकुलेट करके निकाल के दो जरा मुझे। फोकल लेंथ तो सेम है दोनों का, v1 इज इक्वल्स टू v2, अल्टीमेटली u1 इज इक्वल्स टू u2 आ जाएगा। वो तो क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? पहला कंक्लूजन तो मैंने बता दिया कि मुझे अगर इमेज सेम साइज पे चाहिए तो इट शुड बी एट द सेम पॉइंट, दैट इज v1 इज इक्वल्स टू v2। h1 हमारे पास है 6 सेंटीमीटर्स। हमको इमेज साइज निकालना है, h2 निकालना है। मतलब कहीं किसी भी तरीके से पहले हमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन मिल जाएगा तो h1, अगर मैग्निफिकेशन के पहले, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए पहले मुझे u की जरूरत है। व्हाट विल बी द u निकलने के साथ साथ फिर मैं v2 की v की वैल्यू निकालूंगी। u की वैल्यू निकल गई, v की वैल्यू निकल गई, जिससे मुझे मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन की हेल्प से मैं h2 की वैल्यू निकालूंगी। दिस इज हाउ आई विल गो। बट फर्स्ट आई वांट टू नो कि व्हाट विल बी द u। ऐसा u में क्या कंसीडर करूं कि आई शुड गेट द इमेज एट द सेम डिस्टेंस एंड ऑफ द सेम साइज।
and where I should shift the lens. First of all, कहाँ किस तरफ shift करूं मैं? अरे बोलो, मुंह बंद करके क्यों बैठे हो सबके सब? बैच 1 पीपल, कुछ बोलो। क्या लगता है what will be you according to you? You are saying f/2. f/2 किस बेसिस पे बोल रहे हो? Why you are saying minus f/2? और ऐसा कहाँ लिखा है कि माइनस f/2 पे रखने से अगर हम लोग उसको करेंगे शिफ्ट तो वो चेंज हो जाएगा विद द सेम डिस्टेंस एंड सेम साइज? और नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि लेंस को वो एफ से चेंज कर रहा है फोकल लेंथ से, तो भी उसको सेम साइज और सेम डिस्टेंस मिल रहा है। ऐसा कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा क्या पॉइंट्स है जिस पॉइंट पे मुझे सेम कंडीशंस मिलेगी? व्हाट आर दोस पॉइंट्स वेयर आई शुड गेट द सेम कंडीशंस? तुम लोग ने f/2 बोला वो कंडीशन ठीक था, बट मेरे को परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। मैं समझाती हूँ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। ये मेरा लेंस है, मैंने यहाँ पे पेंसिल, ये लेंस प्रॉपर नहीं बना है। लेट मी ड्रॉ परफेक्ट लेंस। सी अगर मैं किसी इस तरीके से चेंज करूं कि लेंस से मुझे वापस से डिस्टेंस f/2 ही मिले मेरे पेंसिल का, तो ही ये पॉसिबल है कि आई शुड गेट द सेम इमेज। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मतलब अगर मैंने एक ये लेंस कंसीडर किया है और एक पेंसिल रख दिया, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे लेंस को जब शिफ्ट करूं सो दैट मुझे सेम साइज और सेम इमेज मिले, सेम डिस्टेंस मिले इमेज का, तो एक ही तरीका है कि लेंस से जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये चेंज ना हो किसी भी तरीके से। दिस शुड नॉट चेंज, ये इसका चेंजेस नहीं आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई कैन से मोस्ट। अब वो बोल रहा है कि मैं इसको f/2 से सॉरी f से चेंज करूं। इफ आई वांट टू चेंज दिस बाय f, सो अगर मैं इसको f से चेंज करूं और मुझे चाहिए कि मेरे लेंस से मेरे पेंसिल का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो ही मुझे सेम साइज का इमेज और सेम डिस्टेंस का इमेज मिलेगा। तो मैं इस लेंस को उठाकर यहां से उठाकर इस साइड रख रही हूँ, और मुझे डिस्टेंस क्या रखना है अभी भी लेंस से मेरे पेंसिल का? कितना रखना है? सेम। एक मिनट रुको, शायद हैंग हुआ है सिस्टम। अब सेम रखना है। ये डिस्टेंस मैंने f का किया है, तो इक्वली मैं कब डिवाइड करूंगी? जब ये डिस्टेंस कितना होगा f/2 और ये भी डिस्टेंस होगा f/2। तो समझा मैंने क्या कहा? समझा एक्सप्लेनेशन था? Yes. 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 यस। आप समझा ये f/2 लेने का रीजन क्या था? f/2 लेने का रीजन ये है कि मुझे उसने तो कंडीशन दी है कि आई शुड गेट द सेम डिस्टेंस एंड आई शुड गेट द सेम साइज। वो तभी पॉसिबल है जब मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फिर से कांस्टेंट ही रह जाए। तो मुझे अगर मैं f डिस्टेंस से इसको शिफ्ट कर रही हूँ, तो मुझे मेरे ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखना पड़ेगा कि मैं यहाँ से भी डिस्टेंस देखूं तो आई शुड गेट f/2, और मैं यहाँ से भी डिस्टेंस देखूं तो आई शुड गेट द सेम। कुछ समझा मैंने क्या कहा? दिस इज द रीजन।
getting f by 2. आशुतोष क्लियर हुआ? Yes, ma'am. शुभम isn't Yes, Santha? miss. Yes. Okay. So if someone is asking you कि why you are taking f by 2, so this is the explanation कि मेरे को मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंथ से सेम रखना है. अगर मैं उसको f से मूव कर रहा हूँ और मुझे चाहिए कि लेंथ से डिस्टेंस सेम रहे, तो ऑफकोर्स एक ही कंडीशन है कि मैं f को आधे आधे से काट दूं और बीच में मेरे ऑब्जेक्ट को रखूं. ये साइड से देखूं तो भी f by 2 का कंडीशन फुलफिल हो और वो साइड से देखूं तो भी f by 2 का कंडीशन फुलफिल हो. दिस इज हाउ इट गोस. अब आपके पास u की वैल्यू है माइनस f by 2. आपको पता है v1 इज इक्वल्स टू v2 है. फोकल लेंथ तो सेम होगा. लेंस फॉर्मूला थिन लेंस कंसीडर करते हैं 1 by v minus 1 by u. अब आपके पास आपको v निकालना है. v1 निकल जाएगा, आप u सब्स्टिट्यूट कर दो. इससे आपको v की वैल्यू आएगी, यू विल गेट द v वैल्यू एज माइनस f. मैग्निफिकेशन आपको पता है. व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज v by u h2 by h1. v की वैल्यू आपको पता है, u की वैल्यू आपको पता है, h1 की वैल्यू आपको पता है. h2 की वैल्यू डालोगे तो यू विल गेट 12 सेंटीमीटर. सॉरी, h2 की वैल्यू यू विल फाइंड इट एज 12 सेंटीमीटर. This is what is the value. And of course, f by 2 है, it will be a virtual image for convex lens. Surely it will be a virtual image क्योंकि f by 2 मतलब फोकल लेंथ के अंदर रखी हुई चीज है और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ के अंदर रखी हुई चीज हमेशा वर्चुअल इमेज क्रिएट करती है. कॉन्वेक्स लेंस में एक ही कंडीशन वर्चुअल देता ही है, वो है फोकल लेंथ के अंदर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स. कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? कुछ समझा what I said? Yes. 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 किसी को कुछ डाउट है इस सब में? क्या आगे बढ़े? Anyone have doubt in the sum? Yeah, we should move ahead. No. Okay. Next sum कौन सा डाउट है? Sum number 13. रीड कर बच्चा, मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है. Focal power of the eye lens of a compound microscope. फिर से रीड करो. Focal power of the eye lens of a compound microscope is 6 diopter. Okay. The microscope is to be used for maximum magnifying power of at least 12.5. Okay. The packing instruction demand that length of the microscope should be 25 centimeter. Yes. Okay. Determine minimum focal power of the objective. How Okay. much will its radius of curvature be if it is a biconvex lens of a n is equals to 1.5. Okay. Now वो बोल रहा है the last sum for today, let's discuss this. क्या बोल रहा है कि उसके पास एक माइक्रोस्कोप है जिसका पावर जो है, फोकल पावर जो है वो पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 6 डायोप्टर. किसका 6 डायोप्टर? कौन से पार्ट का है? आई लेंस का है. Eye lens. ओके. नाउ माइक्रोस्कोप को मैक्सिमम जो एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं उसका मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन इज 12.5. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. नेक्स्ट इट इज सेइंग दैट कि पैकिंग वाले जो भी है जिनका भी डिमांड है माइक्रोस्कोप कंपाउंड को क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने का, वो ये चाहते हैं कि वो जो भी सिलेंडर यूज कर रहे हैं उसका डिस्टेंस एटलीस्ट, उसका साइज एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर का हो. वो बोल रहे हैं डिटरमाइन द मिनिमम फोकल पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव. आपको मिनिमम फोकल पावर निकालना है कि मिनिमम वो कितना फोकल लेंथ उसका कितना मिनिमम हो सकता है आईपीस का. और नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि हाउ मच विल इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने बोल रहा है. अभी मुझे पीई पता है आई लेंस का, तो एफई अपने आप पता चल जाएगा. पी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफई. सो दिस विल गिव यू 1 बाई 6. सेम मुझे एफई मिल जाएगा क्योंकि हमको पता है पीई और एफई के बीच का रिलेशन. मैक्सिमम वो कितना कर सकता है उसका वैल्यू भी हमको पता है. मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं? एम ई मैक्स.
इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाई एफ ई। डी की वैल्यू में हमको 25 सेंटीमीटर होती है, यस एफ ई हमारे पास है, जिससे हमको एम ई मैक्स मिल जाएगा। अब अगर आपको एम ई मैक्स मिल गया तो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की भी कंडीशन मिल जाएगी कि ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होगा। सो दैट विल बी, ऑफ कोर्स आपको पता है कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एम ई, और पूरा साइज उनको पूरा मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन उनका 12.5 का है। आपके पास कैपिटल एम है, जिससे आपको एम नॉट मिल जाएगा, एम ई आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको एम नॉट की वैल्यू आ गई, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो। नेक्स्ट व्हाट क्या करना है हम लोगों को, फर्स्ट हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, पहले वो देखो। डिटरमाइन द मिनिमम फोकल पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मिनिमम फोकल पावर निकालना है किसी भी तरीके से। और नेक्स्ट हमको निकालना है, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कर सकते हो, सोचो और बताओ। अगर आप एम नॉट आपके पास है, एम नॉट इज व्हाट, वी नॉट बाई यू नॉट। यस यस अगर मुझे ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पावर चाहिए, एफ नॉट चाहिए, तो मेरे पास वी नॉट और यू नॉट की वैल्यू, फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स लगाना है। Yes, अगर मुझे reduce हो जाएगा। एफ नॉट की वैल्यू चाहिए तो मेरे पास वी नॉट और यू नॉट होना चाहिए। मेरे को एम नॉट मिल गया, एम नॉट जो भी वैल्यू है, एम नॉट से मुझे वी नॉट और यू नॉट के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। यस रिलेशन मिलेगा। Yes. अब मुझे एक बात पता है कि टोटल लेंथ हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 25 चाहिए, और लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने आपको बताया था क्या होता है, वी नॉट प्लस यू ही होता है, यस करेक्ट। अगर Yes. मैं ऊपर के एफ ई के हेल्प से यू ही निकाल लूं तो मेरे को एल तो पता है 25 है, मेरे को वी नॉट मिल जाएगा। मेरे को वी नॉट मिल गया तो मेरे को इस फॉर्मूले की हेल्प से यू नॉट मिल जाएगा, और मेरे को यू नॉट मिल गया तो 1 बाय एफ नॉट प्लस 1 बाय वी नॉट प्लस माइनस 1 बाय यू नॉट से मेरे को यू पावर नॉट मिल जाएगा। तो अब इस वजह से मेरे को एफ नॉट मिल जाएगा। एफ नॉट से तुमको फोकल पावर मिल जाएगा। दैट इज व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, डिटरमाइन द मिनिमम फोकल पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो वो तो नॉर्मल है, 1 बाय एफ नॉट इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। मैं R1 बट हम लोग क्या लेना है? टेक r, टेक द लेंस टू बी वेरी थिन। दोनों एज्यूम करो कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो टेक इट Positive r। लेना है दोनों का। नहीं नहीं नहीं, कैसे पॉजिटिव लेगा, एक r पॉजिटिव होगा, एक r नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस है ना। Yes, समझा। सो दिस इज हाउ यू विल गो। समझ गया यहाँ तक? जिसको डाउट था उसको समझा, बाकी लोगों को डाउट है इसमें तो पूछो, अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। सम नंबर 11 में नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी जिसको भी डाउट था। हियर वी विल स्टॉप। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, इस समय किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल गो अहेड। सॉरी, वी विल स्टॉप हियर। वापस से रिपीट कर रही हूँ क्या क्या किया। पी 6 डायप्टर दिया है, पी के हेल्प से एफ ई निकाला। मैक्सिमम हमको पता है कितना होता है, 1 प्लस डी बाई एफ ई, करेक्ट है। अब ये हमको एम एक्स दे देगा, एम एक्स दे देगा मतलब हमको एक्चुअली में वो एम नॉट की वैल्यू, सॉरी ये जो पार्ट है ये हमको एम ई की वैल्यू दे रहा है। दिस इज गिविंग मी एम ई, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू एम ई। एम ई मिल गया यहाँ से, एम नॉट मिल जाएगा, एम नॉट से हमको वी नॉट और यू नॉट का रिलेशन मिलेगा। हमको पता है होता है, एफ ई के हेल्प से मैं यू ही निकालूंगी। अगर एफ ई के हेल्प से मैं यू ही निकालूंगी, एक बात याद रखना है कि जब यू ही हम निकालेंगे तो एफ ई के लिए हम वी जो है 25 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि तब आई लेंस से मैक्सिमम हमको तभी मिलता है जब वो हमारे डिस्टिंक्विशन पे होता है इमेज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस समझा शुभम व्हाट आई सेड? सो योर वीई विल बी 25 Yes. सेंटीमीटर। यहाँ से आपका यू ही मिल जाएगा, यू ही मिल गया तो आपको यहाँ से वी नॉट मिल जाएगा, वी नॉट से आप यू नॉट और वी नॉट का बीच का रिलेशन निकालोगे, एफ नॉट में सब्स्टिट्यूट करोगे 1 बाय एफ नॉट में, आपको एफ नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, उससे आपको पावर मिल जाएगा। और पावर सिंस एफ नॉट मिल गया तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला निकाल के वो निकाल सकते हो। सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? आर यू पीपल क्लियर?
Yes. 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 फॉर यू ये पूरा चैप्टर का जितने भी सम्स है, सम नंबर 11 छोड़ के